नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। वॉशिंगटन डीसी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत पाकिस्तान मुद्दे पर अमेरिकी मध्यस्थता को लेकर स्पष्ट रूप से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता का विचार भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इससे आतंकवाद और उसके पीड़ितों के बीच गलत समानता बनती है। थरूर ने कहा, कोई समानता नहीं है आतंकवादियों और उनके पीड़ितों के बीच। कोई समानता नहीं है एक देश जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और एक देश जो बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार को अमेरिका से उच्च स्तर पर कई कॉल प्राप्त हुए, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका की चिंता और रुचि व्यक्त की गई। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया कि अमेरिका ने पाकिस्तान से भी इसी तरह की बातचीत की होगी, क्योंकि यही वह पक्ष था जिसे इस प्रक्रिया को रोकने के लिए मनाने की जरूरत थी। थरूर ने यह भी कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया है और किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। Immediately after the first attack by the terrorists, the United States signaled that, well, that was somebody else's set of issues, we'd stay out of it. Yeah. And within, I think, about 24 hours, the U.S. was, in fact, in trying to mediate. And the vice president was both the one who said, no, it's not our issue, and also the one who came in and weighed in and did. Is it helpful from the Indian perspective, from the other country perspective, is it helpful to have the United States available as a mediator, as a broker, as a transmitter of signals, or should we just stay the heck out of it and let the rest of the world sort things out? I would never presume to tell the U.S. to stay the heck out of anything it wants to get involved in, but mediation is not a term that we are particularly willing to entertain. I'll tell you why, Nelson. I mean, the fact is that this implies, even when you say things like broker or whatever, you're implying an equivalence which simply doesn't exist. There is no equivalence between terrorists and their victims. There is no equivalence between a country that provides safe haven to terrorism and a country that's a flourishing multi-party democracy that's trying to get on with its business. There is no equivalence between a state that is a status quo power that just wants to be left alone by its neighbors where the neighbors don't agree with us, and a revisionist power that wants to upset the geopolitical arrangements that have existed for the last 3/4 of a century. There is no equivalence possible in these cases. And in these circumstances, to suggest that you can mediate between two unequals is not possible. Then how would you characterize the American role, and was it useful and helpful? I'm guessing to some degree, Nelson, that the American role would have been, first of all, to keep themselves informed with conversations with both sides. And certainly my government received a number of calls at high levels from the U.S. government, and we appreciated their concern and their interest. At the same time, they must have been making similar calls at the highest levels to the Pakistan side. And our assumption is that's where, because that's the side that needed persuading to stop this process, that may well have been where their messages really had the greatest effect. But that's guesswork on my part. I don't know what they said to the Pakistanis. Okay. जो संविधान को नहीं मानते वो विदेशी है, वो हमारा देश छोड़कर चले जाए। हुए अगर लोग खुले मंचों से ये कह रहे हैं कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हम हिंदू राष्ट्र मानते हैं अपने आप को, तो आपको नहीं लगता है कि वो वायलेशन कर रहे हैं? बिल्कुल, जो संविधान नहीं मानता है वो भारतीय नहीं है। सबसे पहले तो सिद्ध कर रहा है। जो ये कह रहा है कि मैं संविधान नहीं मानूंगा, वो तो सिर्फ भारत को छोड़ के ही चला जाए। ठीक है। दूसरी बात है हिंदू राष्ट्र की। भाई, हिंदू राष्ट्र बनाना अपने घर में बना, अपने बच्चों को बना, हम पे लादने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि पासपोर्ट वो लोग बना लें जिन्हें हिंदू राष्ट्र स्वीकार नहीं है। नहीं, हम कैसे पासपोर्ट बना लें? हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हमारे पूर्वजों की जमीन है, 85% ने इसको अपनी लहू से सींचा है, देश हमारा, और हम कैसे पासपोर्ट बना लें? जो बाहर से आए वो पासपोर्ट बनवाए ना, जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं वो पासपोर्ट बनवाए। हमारा भारत है। आप मुझे कह दोगे कि पाकिस्तानी है, मैं कहां से पाकिस्तानी हो गया? आप कह दो कि ईरानी है, मैं कहां से ईरानी हो गई? मैं ना ईरानी हूं ना पाकिस्तानी हूं, मैं भारत की हूं, भारत की रहूंगी। ये मेरा देश है, और इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो लड़ाई करेगा वो देशद्रोही है, वो राष्ट्रद्रोही है, और इसको यहां से भाग जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में वर्ण व्यवस्था, महिलाओं को तो कहते हैं ताड़न की अधिकारी हैं। लेकिन तो गीता प्रेस ने तो अभी ताड़न का शब्द शिक्षा देना कर दिया है। देखिए, गीता प्रेस ने तो इतनी धांधलेबाजी मचा रखी है। गीता प्रेस
यूएस अगर इतनी सच्ची होती तो वो संविधान घर घर पहुंचा देती। तुम जो है सड़कों पे गीता को थोपने पे लगे हुए हो, रामायण को थोपने पे लगे हो, किसी दिन संविधान की भी प्रतियां बांट के देख लो ये ना। तो अपने धर्म का प्रचार करना कौन सा अपराध है? वो तो अपना उनकी आस्था है, अगर रामचरितमानस या गीता पर तो प्रचार कर रहे हैं। देखिए धर्म जो है किसी को फोर्सफुली या प्रचार जो है ना, वो आप सबसे पहले देश चलता है संविधान से, सबसे पहले संविधान का प्रचार होना चाहिए। किसी भी स्कूल में अगर जाते हैं, मैं कहूँ जी धर्म पहले पढ़ाएंगे और साइंस मैथ्स ये बाद में पढ़ाएंगे, तो आप कहोगे नहीं जी नहीं, हमारे बच्चे को तो सबसे पहले ये कीर्तन वीर्तन नहीं पढ़ाओ, हमारे बच्चे को वो चीज पढ़ाओ जिससे तो नौकरी मिल जाए। अगर मैं गीता पढ़ भी लूं, रामायण पढ़ भी लूं, क्या मुझे कोई पंडित लगा लेगा? मुझे पंडित नहीं लगाएगा, तो मैं पढ़ के भी भूखी मरूंगी। तो मुझे तो ज्ञान आपको, देखिए उस ज्ञान का क्या फायदा जिसमें मैं भूखी मर रही हूँ। कैमरे लिए खड़े हो आप, माइक लिए खड़े हो, चश्मा लगा रखा है और कोट पैंट पहन रखा है, ये सारी मशीनों से बन रहे हैं। यानी साइंस किसकी जरूरत है? साइंस की। मैं बोल रही हूँ तो मैंने किताबों से पढ़ा, किताब में किससे छपी? मशीनों से छपी। भोपाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार मूंग दाल के किसानों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले किसानों को मूंग की खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन अब सरकार उनकी फसल खरीदने को तैयार नहीं है। कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार मूंग के किसानों के साथ खुला धोखा कर रही है। पहले तो सरकार ने किसानों को मूंग दाल की उपज पैदा करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्पादन किया, लेकिन अब सरकार मूंग दाल खरीदने से पीछे हट रही है, जिससे किसान खुले बाजार में फसल बेचने को मजबूर हैं। एमएसपी पर खरीदी की मांग कमलनाथ ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर मूंग दाल खरीदने की घोषणा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों को घाटे से बचाने के लिए सरकार को तत्परता से मूंग दाल की खरीदी सुनिश्चित करनी चाहिए। पेड़ लगाने के साथ साथ उन्हें बचाना भी जरूरी। राज्य मंत्री लखन पटेल विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ। आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम पिछली बार से जो शुरू हुआ, लाखों पेड़े लगाए गए, उसी सिलसिले में आज दमोह में प्रथम दिवस अभियान का प्रारंभ हुआ। अभी इसके बाद शायद दमोह ग्रीन के उस उपलक्ष्य में भी आज प्लांटेशन होना है। तो मैं अपनी ओर से सभी उपस्थित जनों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी, पेड़ लगाने के साथ साथ उसको बचाने का भी काम करें, और आने वाली गर्मी में जिनने जो पेड़ लगाए हैं कोशिश करेंगे वहां जा करके उसको पानी देने का काम करेंगे, तभी ये योजना सफल होगी। दमोह 5 जून 2025। दमोह जिले की हालत आज पूरे प्रदेश में सबसे चिंताजनक जिलों में गिनी जा रही है। विडंबना यह है कि यहां से 2 मंत्री, एक पूर्व मंत्री और एक प्रभावशाली सांसद होते हुए भी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। प्रदेश के हालिया स्वास्थ्य आंकड़ों में खुलासा हुआ है कि दमोह जिले में 10,000 की आबादी पर एक भी मेडिकल संस्थान तक नहीं है। पूरे जिले में स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या 40 से भी कम है। यह तब जब जिले का प्रतिनिधित्व सरकार के सबसे ताकतवर गलियारों में हो रहा है। प्रश्न उठता है, जब जिले में मंत्री भी हैं, पूर्व मंत्री भी और सांसद भी लगातार सरकार के हिस्से हैं, तो फिर दमोह की जनता इलाज के लिए भटकने को क्यों मजबूर है? क्या सिर्फ मंचों पर भाषण देना और सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालना ही जनसेवा बन चुकी है? ज़मीनी सच्चाई, लोग मामूली बुखार या चोट के इलाज के लिए 40-50 किलोमीटर दूर रेफर किए जा रहे हैं। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालात और भी भयावह हैं। एक तरफ भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में प्रति 1,000 लोगों पर 2 से अधिक बेड उपलब्ध हैं, वहीं दमोह जैसे जिले में 10,000 लोगों पर भी एक मेडिकल सेंटर तक नहीं। चुपता सवाल, जब जनप्रतिनिधि ही मौन हो और मंत्रिपद की गरिमा सिर्फ उद्घाटनों और फीता काटने तक सीमित रह जाए, तो जनता की तकलीफ कौन सुने? क्या दमोह को सिर्फ चुनावों के समय याद किया जाता है? जनता की मांग, दमोह की जागरूक जनता अब जवाब चाहती है। सड़क, बिजली, पानी की तरह अब स्वास्थ्य अधिकार की भी गूंज उठ रही है। सरकार और उसके नुमाइंदों को यह समझना होगा कि स्वास्थ्य सिर्फ एक विभाग नहीं, बल्कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। Subscribe the Bahujan News and like this video.